Yes. So let's get started with today's session. So today we are going to be focusing on something that is not covered in your medication or in your physical health part. We are going to talk about the mindset that you should be having. Want to achieve better weight loss and also how you can build better habits. How can you manage the health related worries or the fears that all of us have, right? So how do you manage all of that? We'll be focusing on all of that today. So before we get started with today's webinar. So first, let's have a small game. Okay, so we all have had a hectic day, so it's almost evening. So before we get into the main matters, we'll maybe first relax, maybe refresh our mind. So I have a small game for you. So I'm gonna show you two images or two screens. So in one slide, there are words written in the same color. Okay, in the other slides, there are words written in different color. So irrespective of what the word is, what the color it is written is, I want you to read the word. Okay. So we'll all of us do it together, and maybe in the chat you can let me know how many of those you were able to read correctly. So I'll just repeat the instruction again. There are some words written, and it is written in different colors. Okay. So whatever is the color, I want you to read whatever is the word. Okay, not the color in which it is written. I want you to read the word. Okay, let me take you the first one. I'll give you 1 minute to cover each slide. Yes. So we are in the first one. So I'll give you 1 minute. So try to read as fast as possible. And once you're done, write how many of them you were able to get correctly. Okay, so we'll go to the next one. So, like I said, here, as you can see, red is written in red, purple is written in purple, blue is written in blue, but in the next one, it can be in different colors also. So, irrespective of um, what the color is, I want you to read the word, not the color in which it is written. I want you to read the word which is there, the name of the color which is there. I want you to read that. So let's see how well you can focus, how well you can differentiate, and you can read the correct words. All right. So the reason why we did this activity is sometimes, we have our own perceptions. We think about things in a certain way. Sometimes we listen to what others are telling and we try to act according to that. Sometimes there's a dilemma between what you should do, if you should follow your heart or if you should listen to the people around you. Sometimes we all carry our fears. But when you focus on the things properly, your brain can always support you to achieve what you are achieving for. So your brain has wonderful abilities. If you support it in the right way, if you feed it in the right way, it will definitely support you. So that was the whole reason why we did this activity. So we're going to use this and understand something called as the anxiety loop. So whenever something happens, right, we all feel worried. We all have our own fears. We all feel anxious. We might feel sad. We might feel affected. So we might get triggered in different ways. So whenever a trigger happens, the first thing that happens is we start worrying. We start worrying about what could happen. We start worrying about all the things that could go wrong. We start worrying about if it's going to affect you too much. So there's a lot of worry. So the moment the trigger happens, there is worry. So when you start worrying, what do? You look for
options, or you check how you can manage it, you check how you can come out of this, so you start checking. So a lot of times this check-in can go overboard. So you might, let's say, when it comes to your health, your body, you might start looking too much online, you might start reading a lot of things, or today chat gpt is there, so you easily just put what you want, you get all the information. So you check, but for a brief moment, or for a short period of time, you might feel the relief, you might feel good, you might feel better. But what happens is, when the checking is too much, if you're constantly checking, if you're paying attention to smallest of things, if you're constantly feeding the anxiety, even though you feel the relief, it is a brief relief, it is only for a short period of time. What happens is, ultimately you will start worrying more. So it's like, let's say there was a small thing here, there was a small thing there, was a small thing that happened yesterday. So your brain will connect everything and will make you feel more anxious. This is the anxiety loop in which all of us are stuck in. So a lot of times, because we are just running in the same cycle, our brain is not able to come out of it. So when it comes to health related worries, health related anxiety, this is the loop that we all get stuck in. So there is a trigger that is happening, we start worrying, we start checking for symptoms, we start checking online, we start talking to a lot of people, we start comparing to others. So after all doing all of that, maybe for a short period of time you'll feel good, but ultimately, because you have so many things that you've fed your brain that are not needed, you'll feel more worry, that will again trigger you. So because you're stuck in it, you're not able to come out of it. So how do you come out of it? There are simple techniques that can be applied to come out of the anxiety loop, to reduce the health related anxiety or health related worries that all of us have. So I'm going to take you through some of them. I'm going to explain you how you can do it. So the first thing you need to do is separate facts from imagination. There is truth and then there is imagination. So sometimes what we hear, what we see, or what we are feeling, it's not just the external thing. Sometimes our own thoughts might not be true. So there might be a difference between what you are seeing and what you are feeling and what is the reality. There might be a difference. So always pause and understand what is happening. Okay, this is what I'm feeling, or this is what that person is telling. Is this the truth, or is it that my brain is going to the worst case scenarios and making everything bigger than what it is? So pause, understand what is the reality and what is the imagination. When you do this, the anxiousness comes down, because your brain has a clarity on what is the truth and what you should be following. So pause, understand your own thoughts, and then act on it. Second thing is, limit body scanning. So you don't have to constantly check your body. You don't have to notice each small thing that is happening in your body. See, for example, when it comes to our body, right, where there are different components that makes our weight. So there is water, there is muscle, there is bone. So there is the food that is going in every day. There is water that you are drinking every day. So there are a lot of parameters that constitutes the weight. If you check your weight every day, if you check your weight twice or thrice a day, there might not be significant change, or sometimes maybe the water retention is more, so you might be weighing few 100 grams extra. So too much body scanning or too much running behind numbers can sometimes increase the anxiety for you. So instead of that, notice how you feel overall. Notice how is your energy, how is your mood, how much were you able to do today, how much you were able to achieve today, how is your social interaction, how safe are you feeling. When you pay attention to all the things that is happening in your body, that is a better score. Not just the numbers, the quality also matters, how you feel also matter. When you have a combination of all three, the health anxiety will be much lesser. Avoid being in the rabbit hole. You don't have to google everything, you don't have to understand everything, you don't have to read and apply everything that they are telling outside. See, here you have joined a program, you have a coach, you have a doctor who's talking to you, who's understanding what is going on with you. They are giving you the suggestions, they are giving you the diet charts, they are giving you the workouts, the medication, based on what is needed for you. The one to one thing is a very personal journey, where they understand you and they give it according to you. They are not telling what somebody else is doing, they are not telling that it helped that person so it will help you also. No, this is a very personalized journey. So instead of just reading and trying to apply everything, sit with a professional, understand what works for you, and you start implementing that. Reading
understanding so many things can be overwhelming for the brain. So your brain might not want to do so many things. Because of that, the habit formation can get affected. And also, a lot of times, like for example, if you open Instagram, somebody has put their health journey. It's not always true. Somebody might have done it for 3 months, but they can tell you that they have done it in 1 month, right? So all the information, just like how you separate what is fact and what is imagination, you also have to understand in reality if it is possible. It's not possible for somebody's body to magically change like that. It takes time, it takes efforts, which has to be put. When you do that, you'll get the results. So with the medication, you work on your lifestyle over here, which helps you to sustain the changes that is happening. So you don't have to believe or you don't have to follow everything somebody else is doing. What is being told to you on your one-on-one sessions is much more significant for you than what is working for somebody else. So talk to your coach, मानसा, talk to the doctor. मानसा, मानसा, थोड़ा सा हिंदी में भी, हाँ। हाँ, ओके बहुत ओके, सारे लोग हैं, नहीं समझ पाते। श्योर श्योर श्योर, ओके ओके। या सो जो भी आप यहाँ पर बात करते हो कोच के साथ, डॉक्टर के साथ, वो समझो, वो आपके लिए पर्टिकुलरली बताया गया है। सो यू फॉलो दैट। आप कोई और क्या कर रहा है, इंटरनेट में कोई क्या डाल रहा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपको जो बताया गया है ये पर्सनलाइज्ड है, ये आपके लिए काम करेगा। यू उस पर फोकस कीजिएगा, उसको करते जाइएगा। इससे अनवांटेड चीजें दिमाग में नहीं होती है, तो अनवांटेड एंजाइटी भी नहीं होती है। अ लॉट ऑफ टाइम्स द एंजाइटी दैट वी फील, हमें जो रेस्टलेसनेस लगती है, वो सिर्फ हमारा माइंड में नहीं है, हमारा बॉडी में भी होती है। सो फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। माइंड काम रखने के लिए बॉडी में जो एनर्जी है उसको स्पेंड करना बहुत जरूरी है। सो गो फॉर वॉक्स, डू सम स्ट्रेचेस, डू सम बेसिक फिजिकल एक्टिविटी। ये आपका मेंटल हेल्थ को भी बहुत सपोर्ट करेगा। माइंड जितना काम रहेगा, एंशियसनेस उतना कम रहती है। बॉडी में भी एंशियसनेस होती है, तो व्हेन यू डू सम फिजिकल एक्टिविटी, दिस एंशियसनेस कम्स आउट। नेक्स्ट इज build a sense of control. See, we all feel fear, we all feel worries, हम सबको emotional disturbances होती है, अलग अलग तरीके का thoughts आती है। It doesn't mean you have to sit with it. You can understand and you can talk to yourself in a better way. जब भी आपको डर लगता है, whenever there is fear, first of all, don't run from it, don't keep thinking about that fear, sit with it. आप समझो कि मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये क्यों लग रहा है, what is the reason for this। फैक्ट्स वर्सेस स्टोरी, फैक्ट्स वर्सेस इमेजिनेशन को चेक कीजिएगा कि इसमें से सही क्या है, क्या मैं इमेजिन कर रही हूँ या कोई और क्या बता रहे हैं। ट्राई टू चेक एंड अंडरस्टैंड द रियलिटी, एंड देन इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द बिग पिक्चर, लुक एट द स्मॉल पिक्चर। इसको लेकर मैं आज क्या कर सकती हूँ। स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स, स्टार्ट विद स्मॉलर स्टेप्स, एंड यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। किसी चीज को लेकर उस पर सोचते रहने से, उसको उससे डरते रहने से कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अंडरस्टैंड दैट। रियलिटी क्या है, इमेजिनेशन क्या है, अंडरस्टैंड दैट। आगे क्या करना है, आज मैं क्या स्मॉल स्टेप कर सकती हूँ इसको मैनेज करने के लिए, ये सोचिएगा। स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। 1% एवरी डे इज 30% एट द एंड ऑफ द मंथ। कुछ ना करने की जगह आप 1% भी अगर रोज करते हो, यू आर ऑलरेडी बिल्डिंग अ बेटर सेंस ऑफ कंट्रोल ऑन योर हेल्थ। अनसर्टेनिटी होती है इन ऑल द एरियाज ऑफ आवर लाइफ, बी इट आवर हेल्थ, बी इट आवर रिलेशनशिप्स, बी इट आवर वर्क। देयर इज अनसर्टेनिटी इन ऑल द एरियाज ऑफ आवर लाइफ, एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटीज। आप हर चीज को डिक्टेट नहीं कर सकते हो, यू कैन प्रेडिक्ट एवरीथिंग, एंड यू एवरीथिंग माइट नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान। ए लिटिल हियर एंड देयर विल बी देयर। सो एक्सेप्ट करो इसको, उसके अकॉर्डिंग अपडेट करो। यू डोंट, अ स्मॉल डिफीट डज नॉट मीन आपका कॉज या पर्पस जो है वो नहीं होगा। डिफीट मीन्स कि थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है या थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। तो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो, ये करने से मेंटल लोड कम होती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट योर बॉडी। ये आपका है। ओके, सो व्हेन यू ट्रस्ट योर बॉडी, योर ब्रेन विल डू वंडर्स। व्हेन यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली डाउटिंग योर बॉडी, आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि ये करूँ कि वो करूँ, क्या कुछ करने पर कुछ नहीं हो रहा है। So if you're constantly feeding negative, your body will feel negative. If you're constantly feeling positive, आपका बॉडी में भी पॉजिटिव महसूस होती है।
आपका बॉडी आपका सबसे बड़ा एसेट है, इसको ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग, always believe that you can achieve what you're working towards, keep telling your brain that you're strong, you can achieve it, you can do all of this. So when you are feeding the right things, आपका ब्रेन को राइट चीजें फीड करते हो ना, जैसे आप डाइट के हिसाब से खाना खाते हो, दिस पुट टुगेदर विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। आपका बॉडी को ट्रस्ट कीजिएगा, ग्राउंड योर सेल्फ, फोकस ऑन द प्रेजेंट, आज क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, इस पर फोकस करो। वॉट एवर यू आर डूइंग, बी प्रेजेंट विद दैट। इफ यू आर ईटिंग, नोटिस द फूड दैट यू आर ईटिंग। इफ यू आर वर्किंग आउट, नोटिस द सेंसेशन, आपका बॉडी में क्या सेंसेशन हो रही है उसको नोटिस करो। If you're sitting and watching a movie, notice different people that are there, notice how they are talking, what is the emotion over there. Be present. The more you are present, right, your brain can focus on things better. So be present, pay attention to your body, pay attention to your surrounding. This helps your brain to function better. Also, जो भी होता है ना, you don't have to act on everything. कोई कुछ कहता है या आपको कुछ लगता है या somebody comes and tells मेरा इतना जर्नी हुआ है, आपका नहीं हुआ है, you don't need to act on it. पॉज, आस्क योर सेल्फ क्या करना है क्या नहीं करना है। यू डोंट हैव टू एक्ट ऑन एवरीथिंग, यू कैन लेट गो ऑल्सो। जितना हम अनवांटेड चीजों को एक्सेप्ट करके लेट गो करते हैं ना, योर ब्रेन इज फ्री। जस्ट लाइक जैसे आप अपना घर को साफ करते हो, यू आर थ्रोइंग अवे अनवांटेड थिंग्स, थ्रोइंग अवे अनवांटेड थॉट्स फ्रॉम योर ब्रेन, रिलैक्सेस योर ब्रेन, योर ब्रेन विल हैव द स्पेस एंड एबिलिटी, उसमें उसको जगह मिलेगा काम करने के लिए, उसको क्लैरिटी मिलेगा काम करने के लिए। आपको हर चीज पर एक्ट नहीं करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रिएक्ट, you don't have to talk back, you don't have to do what the other person is doing. You can always take a call on आप कब एक्ट करोगे, कब आप इसको छोड़ दोगे। the more you learn to balance the both, आपका ब्रेन आराम से रह रहा है। यस, तो हमने देखा कि हाउ कैन यू मैनेज द हेल्थ रिलेटेड वरीज, एंजाइटी, आप क्या कर सकते हो। नाउ आई टोल्ड यू माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए, माइंडसेट शिफ्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है। सो somebody had dropped in the chat कि वो वर्कआउट उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो माइंडसेट अगर ठीक से सेट किया तो वर्कआउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो आई टेल यू व्हाट यू कैन डू, आप कैसे राइट माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो, कैसे ये माइंडसेट रखने से आपका रिजल्ट और अच्छे से होगा। विल टॉक अबाउट इट। See, you are taking GLP medication. Yes, it is helping your body. It is a wonderful thing for you. But everybody is telling you that along with that, lifestyle modification is the key. वो भी साथ में करनी है। Okay, so medication लेने के बाद का क्या करना है, अभी से स्टार्ट करेंगे। सो द लेटर जो भी वेट लॉस हुआ है, जो भी चेंजेस हुआ है, यू विल बी एबल टू सस्टेन इट। सो स्टार्ट बोथ ऑफ देम टुगेदर, सब साथ में करते हैं ना। व्हेन यू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच, दैट हेल्प्स योर बॉडी टू फंक्शन रियली वेल। जो भी रिजल्ट मिलता है उसको सस्टेन करने के लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो दैट्स द माइंडसेट यू शुड बी हैविंग। दिस मेडिकेशन इज हेल्पिंग मी, अलोंग विद दिस मैं ये सब भी करूंगा ताकि ये रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में भी रहे। सो हैव द आफ्टर मेडिकेशन प्लान, बाद में भी क्या करना है वो अभी से स्टार्ट करो। यू कीप डूइंग दैट। सेकेंड थिंग इज बी पेशेंट विथ योर बॉडी। सी फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी करते हो ना, यू हैव पेशेंस फॉर अदर थिंग्स। बाकी लोगों के लिए पेशेंस होता है, बाकी चीजों के लिए पेशेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप घर में एक प्लांट लाते हो, एक रोज का प्लांट है। So the day you get it, it might not have flowers. It does not mean the next day you start blaming it. You right? You don't question the plant. आप वेट करते हो, you keep watering it, आप उसको मैन्योर देते हो, सनलाइट में रखते हो, you wait for it to finally bloom. Your body is the same. Your body cannot give you results in half an hour. Your body cannot give you results in 10 days. Sometimes it might take 1 month, sometimes it might take 2 months, but have that patience. Okay, your body will can do miracles when you support it in the right way. आप पेशेंसली जो करना है उस पर फोकस करते जाइएगा, अच्छे से करते जाइएगा, योर बॉडी विल गिव यू द रिजल्ट्स। प्रोग्रेस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। अगर थोड़ा सा भी नीचे हो गया, इट डज नॉट मीन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इट्स मोर लाइक अ वेव, थोड़ा ऊपर नीचे होती है, पर कंसिस्टेंटली करते रहने से बेटर रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। सो प्लीज हैव द पेशेंस, ट्रस्ट योर बॉडी, सपोर्ट योर बॉडी। एंड परफेक्टली करना है या मुझे ऐसे ही करना है, मुझे इतना ही करना है, ऐसे सोचेंगे ना तो ब्रेन कैन गेट ओवरवेल्म्ड। इंस्टेड ऑफ दैट कंसिस्टेंटली करने की कोशिश कीजिएगा। सी फॉर एग्जाम्पल,
आज आपने हाफ एन आवर का वर्कआउट कर लिया, टुमारो द डे वॉज वेरी हेक्टिक, आपको हाफ एन आवर वर्कआउट का भी टाइम टाइम नहीं है, सो डू 10 minutes ऑफ वॉकिंग, डू सोलियस पुशअप्स, कीप अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू। एंड ऑल्सो ऐसे ही करना है, इतना ही करना है, उसके जगह मुझे रोज करना है, ये माइंडसेट रखो। मुझे रोज वॉकिंग पे जाना है। इट्स ओके इफ इट इज 10,000 today and 8,000 tomorrow, that is fine, but you're walking every day, you are helping your body to लर्न इट, वो हैबिट बनती है। तो डूइंग समथिंग एवरी डे इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन आप कितना अच्छे से कर रहे हो। फर्स्ट मंथ हर रोज करने की कोशिश कीजिएगा, सेकेंड मंथ से परफेक्शन पे टारगेट करेंगे। सो व्हेन यू डू दिस, वो एक नॉर्मल एक्टिविटी बनती है जिसकी वजह से आपका ब्रेन उसको करेगा, रोज रोज उसको करेगा, तो उसको नॉर्मल एक्टिविटी बनाओ। फिर आप उसको इम्प्रूव करने पर, उसमें अचीव करने के ऊपर आप देख सकते हो। सो प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, कितना परफेक्टली कर रहे हैं इससे ज्यादा कितना कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, इस पर ध्यान दो। एंड ऑल्सो पे अटेंशन टू हाउ यू आर फीलिंग। सिर्फ नंबर्स ही मत देखो, ओवरऑल कैसे फील कर रहे हो वो भी देखो। आई एम फीलिंग एनर्जेटिक टुडे, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। माई मूड वॉज गुड टुडे, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आज मुझे उतना थकान नहीं हुआ, मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। along with the numbers, how you feel is also very very important। तो आपका सक्सेस सिर्फ नंबर्स से ही नहीं है, उसके साथ साथ आपका एनर्जी कैसा है, स्ट्रेंथ कितना है, मजल्स कितना बिल्ड हो रहा है, इन सब के ऊपर भी डिपेंड होती है। एंड कंपैरिजन मत करो। एवरीबडीज बॉडी इज डिफरेंट, एवरीबडीज माइंड इज डिफरेंट। आप जितना कंपेयर करोगे ना, आपका ब्रेन को लगेगा मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या शायद मैं उनके जितना अच्छे से नहीं कर सकता हूँ। डोंट कंपेयर, एवरीबडीज जर्नी इज डिफरेंट, इवन दो यू आर डूइंग इट टुगेदर। उनका बॉडी आपका बॉडी अलग तरीके से काम करती है। सो फॉरगेट अबाउट अदर्स, कंपेयर मत करो, अपना जर्नी पर ध्यान दो, अपना बॉडी पर ध्यान दो। लिसन टू योर बॉडी, यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स व्हेन यू डू दिस। इसके साथ साथ ना, अपने आप से आप जो बात करते हो, सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम दूसरों से जब बात करते हैं तो पेशेंटली बात करते हैं, पॉजिटिवली बात करते हैं, बट हम खुद से जब हम बात करते हैं या खुद को मिरर में जब देखते हैं ना, वी आर जस्ट टेकिंग आउट, और हम सिर्फ नेगेटिव्स को देखते हैं या नेगेटिव से बात करते रहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट, फीड पॉजिटिव। आपका ब्रेन जो है ना, एक स्पॉन्ज की तरह है, उस पर आप जो डालोगे वो ही लेकर बॉडी को भेजेगा। अगर आप हमेशा नेगेटिव ही देते रहोगे, दैट यू आर नॉट गुड एनफ, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, ये चीजें जब आप बताते हो ना, बॉडी रिसीव्स द सेम सिग्नल। सो कैच होल्ड ऑफ दीज नेगेटिव सिग्नल्स, उसको आप चैलेंज कीजिएगा, पूछेगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। नो, ऐसा नहीं है, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई कैन अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। कीप टेलिंग दीज पॉजिटिव थिंग्स। नेगेटिव्स को पॉजिटिव में रिप्लेस करेंगे तो योर ब्रेन इज थ्राइविंग। आपका ब्रेन को जितना पॉजिटिव मिलता है, आपका बॉडी में उतना पॉजिटिविटी जाती है, उतना कंफर्टेबली बॉडी भी काम कर पाती है। सो द वे यू टॉक टू योर सेल्फ, कीप दैट एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। आपका सेल्फ वर्थ जो है ना, आपका जो वैल्यू है, ये सिर्फ आपका वेट से ही नहीं डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। व्हाट यू आर एज अ पर्सन, हाउ गुड ऑफ अ सन और डॉटर यू हैव, आप कितने अच्छे पार्टनर है अपना हस्बैंड या वाइफ के लिए, आप कितने अच्छे कोलीग है, आप कितने अच्छे, सी फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ मेड, उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसे होती है, आप कम्युनिटी में सोशल में कैसे काम करते हो। सो देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स दैट आर पुटिंग टुगेदर टू डिफाइन यू। आपका बॉडी वेट आपका इकलौता डेफिनेशन नहीं है, उसके साथ 10 और चीजें हैं जो आपको डिफाइन करने के लिए, वो जो सेंटेंस फॉर्म करनी है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। सो अपने आप को सिर्फ वेट के थ्रू मत देखिएगा। ओके, अलोंग विद दैट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। यस, वेट इज समथिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन, बट आई थिंक आई एम वेरी गुड एट दीज थिंग्स। सो आई थिंक वहां पर जो भी मेरा पॉजिटिव है, मैं उसको निकाल कर अपना वेट मैनेजमेंट में डालूंगी, तो आई थिंक दिस विल ऑल्सो गो बेटर। दैट्स द माइंडसेट यू शुड बी हैविंग। अपना सेल्फ वर्क को सिर्फ वेट के थ्रू मत देखिएगा। एवरीथिंग, पुट एवरीथिंग टुगेदर, सब साथ में मिलके आप बनते हो। एक चीज कभी आपको डिफाइन नहीं करती है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू हाउ डू यू बिल्ड द बेटर हैबिट्स। हैबिट्स को कंसिस्टेंटली कैसे करना है, कैसे अच्छे से रखना है। सी, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। हर दिन का हर घंटे को आपको मैप डाउन करने की जरूरत नहीं है, हम उसको बहुत सिंपल बनाएंगे। हम 4 एंकर्स टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग एवरी डे।
फर्स्ट इज मॉर्निंग रीसेट। आप अपना मॉर्निंग को कैसे सेट करते हो, आपका डे का ट्यून क्या है, कैसे सेट करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन इज व्हाट आर यू गोइंग टू ईट, आज आपका प्रोटीन सोर्स क्या होगा, आपका फाइबर सोर्स क्या होगा, हर मील में क्या बनेगा। यू कैन प्लान दीज थिंग्स बिफोर हैंड। आप ग्रोसरी शॉपिंग करके रख सकते हो, मील प्रेप करके रख सकते हो। मूवमेंट, आज का क्या मूवमेंट होगा, पूरा वीक का क्या मूवमेंट होगा, यू कैन प्लान दिस। लास्ट इज इवनिंग शटडाउन। जितना मॉर्निंग सेट करना जरूरी है उतना इवनिंग शटडाउन भी जरूरी है। रिलैक्सिंग योर सेल्फ is very very essential for good quality of sleep. So these are the four ways or four parts with which you can maintain your day to day routine really well. So morning से reset में सब कुछ देखिएगा, पर्सनल लाइफ में क्या करना है, what is it I need to do in terms of work, in terms of my health. You can do a to do list so that you know how your day is going to be. You can time block also, मैं 10 बजे ये करूंगा, मैं 12 बजे ये करूंगा, मैं शाम को ये करूंगा, मैं वॉकिंग इतने बजे करूंगा, आज जिम इतने बजे जाऊंगा। एक रफ आपका डे का एक टाइम टेबल आप बना लो। उसके बाद खाने का, जैसे मैंने बताया, आप मील प्लान बना सकते हो, वीकली मील प्लान, या फिर एटलीस्ट 3 डेज का आप मील प्लान बनाकर चलो कि ब्रेकफास्ट में ये खाना है, लंच में ये खाना है, डिनर में ये खाना है। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन बाय द ग्रोसरीज। गोइंग टू किचन, हैविंग टू थिंक एंड प्रिपेयर एट दैट पॉइंट कैन बी ओवरवेलमिंग एट टाइम्स। पहले से ही आप प्लान करके रखोगे तो बहुत ही ईजी होती है आपका ब्रेन को उसको फॉलो करने के लिए। And when you buy the groceries, when it is available, when you go to the kitchen, you can save a lot of time making those things. Movement, plan your movement. Okay, if I'm going to gym, when is my core workout? When am I lifting weights? When is my leg day? So ऐसे आप प्लान करके रखो। उसके साथ, okay, today I think I'm doing bigger workout, so I'll do maybe I'll just do this simple activity other than this. Or maybe today, आज मुझे जिम जाने का टाइम नहीं है, तो maybe 3 times I'll do the walking. So think about what is your movement or your workout is going to be. You can plan it for the whole week, and you can change it also. Let's say today you had more time, you can do something else. Let's say today you had less time, you can swap. Let's say आज की जगह कल जो करनी थी वो कर लीजिएगा. You can swap also. So make plans like this. आप planners यूज कर सकते हो, या एक डायरी में लिख सकते हो, अपना फोन की कैलेंडर में आप ये सब कर सकते हो। बट जब आप प्लान करोगे ना, ब्रेन को क्लैरिटी होती है, स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से ब्रेन अच्छे से उसको फॉलो कर पाता है। इन तीनों के साथ साथ शट डाउन करना, स्लो डाउन करना बाय द एंड ऑफ द डे इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे आप मॉर्निंग को एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, वैसे वाइंड डाउन का एक रिचुअल रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाफ एन आवर बिफोर योर बेड टाइम किसी प्रकार का स्क्रीन देखना बंद कीजिएगा। वो हाफ एन आवर में कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटी कीजिएगा। यू कैन डू मेडिटेशन, आप कुछ पढ़ सकते हो, यू कैन लिसन टू सम रिलैक्सिंग म्यूजिक। आप पानी में एप्सम सॉल्ट रख के सॉल्ट डाल के पैर रख के बैठ सकते हो। आप अच्छे से अच्छा क्वालिटी का सेंटेड कैंडल्स लाइट करके, यू कैन जस्ट सिट विद दैट स्मेल, विद द माइल्ड लाइट दैट इज देयर। ऐसे कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटी करके व्हेन यू गो टू स्लीप, स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब नींद अच्छे से होती है ना, योर बॉडी हैज रिकवर्ड, योर बॉडी इज रेस्टेड प्रॉपरली, सो अगले दिन का एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बॉडी वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होती है। हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वेट मैनेजमेंट। हार्मोन्स, नींद अच्छे से होती है तो हार्मोन्स बहुत बैलेंस रहती है, तो sleep is equally important in weight management. So when you divide your day into these four things and you plan it out, it's easier for you to follow everything that you need to follow. Overwhelming नहीं लगेगा. How do you build habits that stick? These are some simple things that you can do. Like I said, consistency over intensity. कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा कितना consistently कर रहे हो, स्टार्टिंग में इस पर ध्यान दो। Later you can go towards intensity or how perfectly you are able to do it. Have a minimum version of it. Instead of skipping the activity completely, उसका एक minimum version करो। See, हर रोज एक जैसा नहीं होता है, ऑफकोर्स हर किसी के करियर के अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग नीड्स अलग होते हैं, तो ऊपर नीचे तो होती है। सो इंस्टेड ऑफ स्किपिंग द एक्टिविटी, मिनिमम वर्जन करो। इंस्टेड ऑफ हाफ एन आवर ऑफ वॉकिंग, 10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग कर लो। स्किप मत करो। जितना आप स्किप करोगे ना, योर ब्रेन लव्स कंसिस्टेंसी, जितना आप कंसिस्टेंटली करोगे उतना अच्छे से हैबिट फॉर्मेशन होगा। मिनिमम वर्जन रखो, स्किप करने की जगह डू अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इट। अपना एनवायरनमेंट को अपडेट करो, आपका स्नैक्स जो है उसको हेल्दी बनाए रखो। आप आपका हेल्थ के अकॉर्डिंग, डाइट के अकॉर्डिंग इन चीजें घर में रखो। बिंज ईटिंग के लिए अगर चीजें आपके सामने नहीं होगा तो बिंज ईटिंग नहीं होगा।
जो भी आप खाओगे, जब सब कुछ जो भी रखा है वो हेल्दी है, तो यू विल ईट हेल्दी, इट्स इजियर फॉर यू टू फॉलो दैट ऑल्सो। कभी कभी ना हैबिट फॉर्मेशन में डिफिकल्टी हो सकती है, तो क्या आप क्या कर सकते हो, एक जो एग्जिस्टिंग हैबिट है उसके साथ नया हैबिट को ज्वाइन करो। सी फॉर एग्जाम्पल, आपको वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है या फिर आप वर्कआउट के लिए टाइम निकाल नहीं पा रहे हो, सो सी वेयर कैन यू डू इट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एक हाउसवाइफ है, आप घर का काम कर रहे हो तो वहीं पर कर लो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर वाचिंग टीवी, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग कीप वॉकिंग इन द रूम। लेट्स से यू आर फोल्डिंग द क्लोथ्स, सोलियस पुशअप्स कर लो बैठ के। लेट्स से यू आर कुकिंग, यू आर सॉटेइंग समथिंग, यू आर वेटिंग समथिंग टू कुक, वहीं पर किचन में ही वॉकिंग कर लो, वहीं पर थोड़ा स्ट्रेचेस कर लो, जहां हो सकता है वहां पर करो। लेट्स से यू आर ऑन अ कॉल, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो। अ लॉट ऑफ टाइम्स नो, मीटिंग्स में जब होते हैं तो मीटिंग्स में वीडियो ऑन नहीं किया है, यू आर नॉट टॉकिंग एक्टिवली, डोंट सिट, कीप वॉकिंग देयर ओनली। सो यू कैन अटैच अ न्यू थिंग टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट, इसके वजह से नया हैबिट बिल्ड करने में भी मदद मिलती है। सो सी हाउ यू कैन अटैच इट, हाउ यू कैन डू इट विथ समथिंग एल्स यू आर डूइंग, दिस हेल्प्स यू टू बिल्ड दैट हैबिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवॉर्ड, अपने आप को रिवॉर्ड करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, पॉजिटिव री दो। आप जो भी करते हो उसको अप्रिशिएट करो। जस्ट लाइक अगर एक बच्चा कुछ भी करता है ना, वो चलना सीखता है, अपने आप से खाना सीखता है, तो हम कितना अप्रिशिएट करते हैं। यू आर लर्निंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना हेल्थ के लिए जो इंपॉर्टेंट है आप वो चीजें कर रहे हो, तो कीप अप्रिशिएटिंग। कितना अच्छे से आज मैंने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आज मैंने मेरा डाइट करेक्टली फॉलो किया, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। छोटे छोटे चीजों पर भी जितना पॉजिटिविटी ब्रेन को फीड करेंगे, उतना पॉजिटिविटी बॉडी को भी मिलेगी। कीप अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, पॉजिटिव चीजें बोलते रहिएगा अपने आप से। इसके साथ ना मेंटली कभी कभी बहुत स्ट्रेस होती है या इमोशनली डिस्टर्बिंग चीजें होती है, या डे टू डे का इतने सारे चीजें मैनेज करने का ओवरवेलमिंग फीलिंग हो सकती है, तो मेंटल हेल्थ ऊपर नीचे हो सकती है। तो देर आर सम सिंपल प्रैक्टिसेस, हैबिट्स जो आप अपना डे टू डे में रख सकते हो, जिससे आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। वेट मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ का भी कनेक्शन है। इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड मेंटली, योर बॉडी विल प्रियोरिटाइज आपका सेफ्टी, जिसकी वजह से वेट लॉस कभी कभी स्टक हो सकता है। एंड ऑल्सो आपका हार्मोन्स जो है वो भी ऊपर नीचे होती है, मेंटली आपको कैसा लग रहा है उसके ऊपर। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी बिगर इश्यूज, यू कैन ऑलवेज कम एंड टॉक टू मी। हमने मेंटल हेल्थ कंसल्टेशंस भी रखा है यहाँ पर। सो एनी इश्यूज वेर यू फील लाइक नो, आई थिंक ये मुझे ट्रबल हो रही है, मुझे इस पर काम करनी है, यू कैन कम टॉक टू मी, वन ऑन वन बात करेंगे, उसको उसमें क्या करना है, आई गाइड यू ऑन दैट। बट दीज आर जनरल थिंग्स दैट ऑल ऑफ अस नीड्स टू बी डूइंग टू टेक बेटर केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। फर्स्ट इज ब्रीथिंग एक्सरसाइज। दिन में जब भी हो सके टेक शॉर्ट ब्रेक्स, 5 मिनट्स 10 मिनट्स लीजिएगा, आराम से बैठ के अपना ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिएगा। स्लो डाउन योर ब्रीथिंग, जितना धीरे से हो सके उतना धीरे से ब्रीथिंग कीजिएगा। ये आपका ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, हार्मोन्स को स्टेबल करता है, पूरा बॉडी फंक्शनिंग रीसेट होती है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज अ वंडरफुल टूल। ये आप दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार कीजिएगा। नेचर इज द बेस्ट रिलैक्सेशन। जितना हम नेचर के साथ, जिस नेचर के पास होते हैं ना, हमारा मूड अच्छा रहता है, कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन कम होती है, हमारा मेंटल फंक्शनिंग अच्छे से होती है। नेचर इज अ वंडरफुल थिंग फॉर आवर हेल्थ। गो आउट एंड स्पेंड टाइम विथ नेचर। गो फॉर वॉक्स, वॉक आपका फिजिकल एक्टिविटी भी होगा, मेंटल रिलैक्सेशन भी होगा। यू कैन जर्नल, यू कैन राइट डाउन योर थॉट्स। अगर ओवर थिंकिंग है, दिमाग में बहुत सारे चीजें चल रही है, क्लैरिटी नहीं है, यू कैन राइट अबाउट दिस टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर। विजुअलाइज, आप बैठ के इमेजिन कर सकते हो, जो विजुअलाइज रिलैक्सेशन भी होती है, मोटिवेशन के लिए भी होती है। आपका फेवरेट प्लेस इमेजिन करोगे तो यूल फील रिलैक्स। फ्यूचर, आफ्टर 1 मंथ दिस इज हाउ माई हेल्थ इज गोइंग टू बी, आप बैठ के वो विजुअलाइज करो। इफ you have a favorite dress that you're not fitting into, visualize that I am working, I will get great results, I'll fit into that dress, this is how I'm going to look. Visualize, you are preparing your brain for that. When you show your brain what it can get, your brain will function really well towards that. Visualization practice करो, social interactions करो, family के साथ, दोस्तों के साथ। See, here also the reason why we do all of this, it's one is of course we want to help you, we want to guide you, but ये जो सोशल कनेक्शन है ना, वेयर ऑल ऑफ अस आर कमिंग टुगेदर, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दिस इज हेल्पिंग योर ब्रेन टू रेगुलेट योर इमोशंस, टू इम्प्रूव योर रेजिलियंस। अ लॉट ऑफ
हेल्प हैपेंस फ्रॉम सोशल कनेक्शंस ऑल्सो, ये भी रखिएगा। सेल्फ केयर एंड हैविंग हॉबीज, अपना ख्याल रखो, जो अच्छा लगता है वो करो, छोटा मोटा हॉबीज रखो। यू कैन, इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी आर्ट, इट कैन बी क्लिकिंग सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स विथ योर फोन, कुछ भी छोटा सा हॉबी रखो। ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ जितना अच्छा रहता है उतना फिजिकल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में सपोर्ट करता है। इट गोज हैंड इन हैंड, व्हेन यू टेक केयर ऑफ बोथ यू विल गेट ग्रेटर रिजल्ट्स। ओके, सो अ लॉट ऑफ टाइम्स मेंटल हेल्थ कुड बी द मिसिंग पीस ऑफ योर पजल, वो ऐड कर लेंगे तो आपका हेल्थ का जर्नी बहुत अच्छे से होगा। इफ यू नीड दैट सपोर्ट, आई एम हियर, यू कैन ऑलवेज कम एंड टॉक टू मी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, like let's take those questions now, and I would love to answer and clear anything if you have doubts or questions.